ध्यान करो. Okay, so this subject, ni is subject, then pa is a past sentence. Shweko means fruit, that's a object. तो past sentence में subject के बाद पा होता है, पा के बाद object आ जाता है, verb नहीं आते. उसके बाद verb आता है. After the object, verb comes, and then quali is like complement of result. So please bring the fruit here. So ni means you please bring the fruit here. Pa shweko means, I mean, pa is a past sentence. Shweko means fruit. Na means bring. Kolai means यहाँ पे लेके आओ, यहाँ पे लेके आओ. अभी इंग्लिश में वो ट्रांसलेट नहीं होता. कोला इसका हिंदी में होता Bring है. it here. अरे bring it here, that is why please bring the fruit here. बट हम लोग जैसे बोलते हैं इधर लेके आओ, इधर लेके आओ, वो ऐसे टाइप का वो चाइनीज इंग्लिश के साथ इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड के साथ मैच नहीं होता. वो एशियन लैंग्वेज के साथ ही मैच होता है. सो कोला Okay, इज मैम bring लिख लूँ इसको मैं. हाँ सॉरी, Bring आई थी. मैम bring लिख लूँ इसका मतलब. bring. Na is bring. So you please bring the fruit here. So na is मैम na is bring. bring. तो Kolai means, kolai. yeah, kolai means It's a slang. हाँ, it's a complement of result. तो यहाँ Okay. पे कोलाई का कोई translation they have not given. So please also it is not there. You is there, but you is not. They have not given ni. And okay, please bring the fruit here. Okay. Okay. Now we'll go to the grammar. Now we'll go to the Shangqi means new word. After that we'll go to the grammar. Okay. The Shangqi Tashao. Tashao means clean, to swipe. To clean. Tashao mulega matlab. Kanching means to clean, which is adjective. Ranho means conjunction. Then after that, ping xiang means refrigerator. Okay. Shi Ping chao. xiang. Ping xiang. Very good. To take a bath, shower. Very good pronunciation. Chiemu means program. Now you said this from the ये छे तुम pronounce करो. एक मिनट मैम. Tashao, to clean or to sweep. Kangchian, clean. Kanching. Kanching, हाँ. Kanching, to clean. Run ho, then or after that. And ping xiang, refrigerator. Shi chao, to take a bath or shower. And GMO, तो प्रोग्राम. तो ये क्या होता है प्रोग्राम? तो ये क्या होता है? रन हो का मतलब फाइनली भी होता है, देन है, कभी कभी फाइनली भी वो लोग बोलते हैं फाइनली रन हो. फाइनली आई गॉट द टिकट. रन हो, वो ताओ, वो माई तावला, वो द ची मतलब फेची वाला ची फ्याओ मीन्स फ्लाइट टिकट. अच्छा, ये इतना दूर तक पढ़ा ना? ठीक है. मैम 6 तक पढ़ा. Yueliang means moon. Xiang means to be like. Hanzang means to play. Guafang to be windy. Shushu means to uncle. आई मतलब आंटी. ये मराठी में भी आई बोलते हैं ना, आई ना, मॉम को बोलते हैं आई. मैम आई नहीं बोलते, इसको चाइनीज में क्या बोलता है? मतलब बहुत सारे सीरियल्स में ना आइया. आई आंट. कुश. Kush means story. Shang means sound and voice. Okay. अभी बोलो, तुम बोलो. मैम Yueliang, moon. Xiang, to be like. Punch, plate. Kuafang, to be windy. Shushu, uncle. Ai, auntie. Kush, story. And Shangin, voice. Sound voice. Okay. Saitan, your pronunciation has become super nice. Okay, it's very, very nice. I can feel that you are listening to the recording and everything.
I can feel now you have become very serious. Caitan, menu. Jiantan, simple. Xiangzi jiao, banana. Okay, ये तीन ही बोलो. Chaitan menu, हम्म Chantan simple, हम्म मैम ये क्या है? xiangjiao, शांगचियाओ, banana. शांगचियाओ बनाना। ठीक है. तो तो शांगचियाओ फर्स्ट विल गो. यहाँ पे क्या लिखा है? छाइतान. तो छाइतान मतलब मेनू. ओके. मेन्यू। फांस मतलब मैम क्या मैम? प्लेट फांस प्लेट. हम्म. या फांस 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 अच्छा ये बोलो. फांसा मतलब प्लेट ना. टीएन मीन्स टीवी नो. चीएमू मतलब प्रोग्राम. सो टीवी प्रोग्राम. डी या Even though there is no program, but this is just TV. But it is the translation is a TV program. TNC मतलब only TV. CMO मतलब अभी मिला आपको देखो. CMO मिला ना आपको अभी. ये देखो CMO मतलब प्रोग्राम टीवी प्रोग्राम. ओके. यूएल यांग मतलब अभी मिला आपको मून ना. यूएल यांग मतलब यूएल यांग मतलब मून. पिंग श्यांग. श्यांग पिंग श्यांग श्यांग ग्लास. फ्रिज. बना नहीं मैम। अच्छा हाँ, पिंक श्यांग। पिंग श्यांग मतलब फ्रिज. पिंक श्यांग यस। श्यांग श्यांग चाओ. मैम श्यांग चाओ इट्स बनाना। ये देखो लास्ट का है. शियांगचिया यस। कंटेन बनाना. ठीक है. तो दिस वन इज डन. एंड this one will do after the grammar because you will not understand that. Okay, so once I do the grammar, then you will understand, then you can do on your own. So we have done only new words. मैम Okay. चायतान इज मेन्यू ना? हाँ छाइतान मीन्स मेनू. छाई सी को हम लोग छ बोलते हैं ना. छ बोलते हैं. ठीक है यो छाइतान. Fu Yuan means waited. Qing Tai need the Chaitan. Fu Yuan waited. Qing Tai need the Chaitan. Please get me the menu. मेन्यू। Okay. ठीक है. Now you become very confident. You will go to Chinese restaurant and ask in Chinese. then what happened? No, they ask one foreign. मैम बस जो मैं बोल रही हूँ उन्हें समझ आ जाए, जो वो बोले वो मुझे समझ आ जाए। हाँ दैट इज वेरी डिफिकल्ट. जो तुम बोलोगे वो उसको समझ में आएगा. जो वो लोग बोलेगा वो समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट सबके लिए होता है. इवन वी फेस द सेम प्रॉब्लम द वे दिस. बिकॉज हम लोग जो चाइनीज बोलते हैं ना वो बुकिश चाइनीज होते हैं. और वो लोग जो जैसे हमारा हिंदी. जो चाइनीज पीपल जो अगर हिंदी सीखेगा तो एकदम अच्छा क्लीन वाला हिंदी सीखता है. और हम घर में कौन सा हिंदी यूज करते हो? ये कर ले जा ले ये मैम एक्चुअली वी हिंदी आर यूजिंग इंग्लिश। हाँ. तो घर में जो हम लोग हिंदी यूज करते हैं वो हिंदी यूनिवर्सिटी में चाइनीज लोगों को और फॉरेनर लोगों को पढ़ाते नहीं है. वो लोग को डिसेंट वे का हिंदी सिखाते हैं. हाँ तो वो डिसेंट हम लोग जो घर में हिंदी में बात करते हो आधा ही समझ में आता है उन लोगों को. हाँ तो वो जो लैंग्वेज आधा आधा बोलते तो वो दैट इज द मैम रीजन. हम हिंदी बोलते ही गए, मतलब एटलीस्ट वो लोग पूरी चाइनीज तो बोलते हैं, हम लोग पूरी हिंदी बोलते ही नहीं है। हाँ वी बोलते नहीं. ऑलवेज यूज हाँ इंग्लिश, हाँ हिंदी नहीं एंड इंग्लिश का ऐसे मिक्स। नहीं. तुमको एक मैं एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे कि मई टीटी चे चे क. सो मई मीन्स पता है ना यंगर सिस्टर. चे मीन्स एल्डर सिस्टर. टीटी मीन्स यंगर ब्रदर. एंड व्हाट इज दैट क मीन्स यंगर ब्रदर. वो लोग ये बोलते ही नहीं है. वो लोग ये बोलते नहीं नहीं. बोलते हैं मैम, नहीं वो अभी न्यू बोलते. न्यू वो क्या? अभी। लिसन लिसन बोलते मई. बोलते मई चिंकेयो. मई बोलते हो वो लोग. टी 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 टीए. वो आधा बोलती है. मई नहीं बोलते. मई टीए टी. मैम अभी हमारा वो न्यू न्यू जब अभी कमोद गए थे तब तो वो न्यू न्यू काका काका बोलता रहता था कि हाँ शूशु बोलते हैं. शूशु मीन्स अंकल. बट जो मैक्सिमम टाइम जो लोग बहुत अच्छे हैं बोल लेते हैं. बट मैक्सिमम टाइम वो आधा आधा यूज करते हैं. मई. हाँ वर्षो लाइक 你做什么 what are you doing now 现在你做什么 निशा. वो लोग जब बोलते हैं निशा मतलब ऐसे निशा मीन्स व्हाट आर यू डूइंग. बट हम लोग का बुक इज चाइनीज में व्हाट आर यू डूइंग 你做现在你做什么呢
नीचू शमना मीन्स व्हाट आर यू डूइंग। और जो स्पोकन चाइनीज में जो बोले निशा, निशा मीन्स व्हाट आर यू डूइंग। तो ऐसे किसको समझ में आएगा, किसको समझ में, निशा बोलेगा तो किसको समझ में आएगा। तो अगर तुम वहां पे 6 महीना की, 2 महीना की, 1 महीना बात करो और ट्राई टू लर्न देयर, हाँ बोल क्या रहा है, तो तुम, बिकॉज यू आर लर्निंग चाइनीज, यू कैन रिलेट दैट। अच्छा ये नीचू शम्मा को निशा बोलते हैं, अच्छा क को क बोलते हैं, क्यों मुझे क्यों पता चला, क्योंकि मुझे चाइनीज आता है। अब तुमको चाइनीज आता है, अब तुम वहां पे 1 महीना रह लिया, तो अब तुम बोलने का कोशिश करो, बहुत ट्राई कर रहे हो, तो अब तुमको क्या पता चलेगा, अच्छा ये लोग इतना बड़ा सेंटेंस बोलते नहीं है, इतना बड़ा सेंटेंस मतलब व्हाट आर यू डूइंग, इसको इतना निशा बोलते हैं, मतलब ये इतना छोटा छोटा करके। तो तुमको, बिकॉज यू नो द फॉर्मल वे, बुक इज that formal way Chinese language, so you will be able to catch it. For that Yes, ma'am. yeah, for that you need to spend little bit time, even if you don't spend little bit time also, कुछ recording भी सुनते हो और कुछ movie भी देखते हो, तब even if you don't spend in China, if you watch some movies, हाँ तो आपको पता चलेगा, अच्छा ये सेंटेंस तो मैम ने ऐसे सिखाया, ये लोग ऐसे बोल रहे, तो मतलब ये जब बोलते हैं, ये बुकिश चाइनीज यूज नहीं करते बोलने का टाइम, तो बिकॉज यू, और मेरी चाइनीज की जो हाँ प्रोनाउंसिएशन है हाँ वो जस्ट बिकॉज ऑफ दो सीरियल्स ना उसी से इम्प्रूव हुई है। हाँ हाँ, तो वेरी उनको गुड। सुनती हूँ। हाँ, because of that only, because you know the Chinese language, you will to able to find out the differences. यस मैम, हम्म, ठीक आई है। नो। हाँ, नाउ हम लोग आज जो इम्पोर्टेंट, वेरी नॉट डिफिकल्ट, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट ग्रामर, ये बहुत यूज होता है, लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड बट ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बहुत यूज होता है, ठीक है। इन चाइनीज द स्ट्रक्चर ए पा बी, ए मतलब प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ रेजल्ट और डिरेक्शन, कैन बी यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन विच इज डन ऑन ए डेफिनेट पर्सन or thing and has brought a result to or has changed the position of the person or thing. For example, तो यहाँ पे मैंने तुमको सिखाया था प्रीवियस लेसन में, सब्जेक्ट, देन पा, देन ऑब्जेक्ट, देन वर्ब, इतना तक। इस सेंटेंस में सिखा रहे सब्जेक्ट एक एक्स्ट्रा हो रहा है, दो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिजल्ट और डायरेक्शन ये वाला सब एक्स्ट्रा हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस पा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ रेजल, ओके। तो यहाँ पे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, वो पा ई फू शी कांचिंगला, वो मीन्स आई, देन पा, पा इज अ पास्ट सेंटेंस, ई फू मीन्स क्लोथ्स, शी मतलब टू वॉश, कांचिंगला मीन्स क्लीन्ड, क्लीन, कांचिंग मतलब अभी आपको मिला कांचिंग, अभी आपको कांचिंग मिला, हाँ, कांचिंग मतलब क्लीन, ठीक है। कहाँ पे मिला कांचिंग, देखो कांचिंग मतलब एडजेक्टिव, इट्स नॉट अ वर्ब, तो इट इज अ कांचिंग मतलब क्लीन। तो आई हैव, आई वॉश्ड और आई क्लीन माई clothes, basically means I clean my clothes, but यहाँ पे this is the complement of result, okay, this because this is the adjective, that is why they are saying this is the complement of result, okay। Then second is mama, हाँ mama hai me pa fun so how na, mama means mother, hai me means not yet, not yet. So this full things, Mama Jaime is full thing is a. Okay, this full thing is a Jaime. Then pa, then fun. Fun matlab object. Fun matlab food. Then verb. So is a verb means to do, to make, to prepare. How? No. How? No. This is also adjective. Good. So mother not yet made the food. But my mother not yet prepared the food. Okay. ओके, लेकिन मैम इसमें to indicate an action which is done on a definite person, like I don't get it. तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। Or thing that has अच्छा brought तो or is brought or हम has changed the position of the person or thing, for example। मतलब मैम इसमें वो
मतलब पोजीशन यहाँ पे कहाँ जो चेंज हो रही है? छू लाई वही हमेशा वो नहीं होगा, छू लाई और को लाई, मतलब हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिजल्ट, मतलब क्लीन, दीज आर ऑल एडजेक्टिव. Chulai is not an object come out, or kolai means passes. So these are not an adjective. So in Chinese, the structure of a complement can be used in a direct, the indirect action which is done or definite person or thing has brought to result, has changed the position of the person or things. For example, तो यहाँ पे position change मतलब I have cleaned the I have washed the I have cleaned the clothes. हाँ, यहाँ पे पोजीशन चेंज नहीं दिखा रहा है, बट क्लोथ इज लाइक, या दे जस्ट सेइंग द कॉम्प्लीमेंट, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिजल्ट. ओके. ओके, छूलाई इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिजल्ट. ना छूलाई, हुओलाई. सो चिंग थुंग मन पा छियन पी. चिंग मतलब प्लीज क्लासमेट टेक आउट. ना छूलाई मीन्स टेक आउट योर पेंसिल. नी पा शुए को, नी पास शू को ना को लाई. यहाँ पे है ना, नी पास शू को ना को लाई, प्लीज ब्रिंग द फ्रूट हियर. Okay, but yeah, you're right that exactly not matching that, that is, but this is the thing is that they are, and the compliment, just अभी यही दिमाग में रखो कि जो past sentence I taught you in lesson 13 or 12, they have only given the subject, and then you will gradually understand, then subject, then pa, then object, then verb. But here we are giving one extra thing, complement of result और डिरेक्शन. ओके, जैसे ना छूला ये डिरेक्शन होता है. टुक इट आउट, टुक इट आउट, तो टुक इट आउट मतलब बाहर लेके आया. तो क्लासमेट, प्लीज क्लासमेट वो जो पेंसिल बाहर लेके आओ, मतलब ना छूला, ब्रिंग इट आउट. That is kind of direction. Okay. So ni pashweko na kolai. So please यहाँ पे जैसे बोला please na kolai is kind of passing to, please bring the fruit here. Here is, you can say here is a direction. No. So in the first two sentence there is no direction. So na kolai is a direction. यहाँ पे लेके आओ, यहाँ पे लेके आओ फ्रूट. तो दैट इज अ काइंड ऑफ डिरेक्शन इट इज शोइंग. सो इट, ओके. हाँ, डेफिनेट पर्सन और थिंग्स, पर्सन भी हो सकते, थिंग भी हो सकते, हैज ब्रॉट और रिजल्ट हैज चेंज द पोजीशन ऑफ द पर्सन और थिंग्स. तो हाँ, यहाँ पे जैसे चेंज द थिंग्स, यहाँ पे जैसे चेंज द थिंग, बाहर लेके आओ, ब्रिंग इट आउट. और दिस वन, या दिस वन इज प्लीज ब्रिंग इट आउट. यहाँ पे भी कि प्लीज ब्रिंग द फ्रूट ओवर हियर. ओके, now we'll do this one. Please read it. Mama, बोलो मामा रंग वो चाय खान ईट हियर चक चेमू पा. तो उसका क्या होगा मीनिंग? मैम मामा. मामा रंग वो चाय खान ईट हियर चक चेमू पा. आई डोंट नो मैम. चाइनीज पढ़ना इज वेरी टफ अभी. हाँ, क्या बोला? मैम चाइनीज पढ़ना इज वेरी टफ अभी. ऐसे 15-20 वर्ड्स ही हैं जो सिर्फ ना पहचान में आते हैं, जैसे नी, वो, नहीं नहीं, थोड़ा मा. सा प्रैक्टिस. आप लोग राइटिंग 5-5 पीस मैंने प्रैक्टिस करने के बोला था, नहीं किया. तो मम्मा मीन्स मदर, रंग वो मीन्स लेट मी वॉच अ लिटिल बिट दिस प्रोग्राम, प्लीज लेट मी वॉच दिस प्रोग्राम. तो उसने क्या बोला? हाउ पा. गुड. नी पा चक चेरू वन खन मीन्स कंप्लीट करो ये देखना, चू चू शे, मतलब तुम यहाँ पे लिख सकते हो हाउ पा. ओके, उसने बोला मामा प्लीज लेट मी वॉच दिस प्रोग्राम. एक्चुअली मे बी ही इज वॉचिंग टीवी और ही इज वॉचिंग अ प्रोग्राम ऑन द टीवी. इसने बोला ओके. नी पा चक चिएमू. नी मीन्स सब्जेक्ट, पा मीन्स पा, चक चियोमी मीन्स ऑब्जेक्ट. नी पा चक चिएमू. और उसके बाद नी पा खान वन मतलब फिनिश करो, देख के फिनिश करो. खान वन च्यू, देन दिस च्यू मतलब देन यू गो फॉर होमवर्क. ओके. ओके. ओके, उसके बाद यहाँ पे फांगचियन ली. फांगचियन ली ये तुमने लिखा था. फांगचियन ली इनसाइड द रूम
Chiral. उफ, इट्स टू हॉट इनसाइड द रूम। तो हम लोग एसी ऑन करते हैं ना, और फैन ऑन करते हैं। कुछ भी। तो एसी, यहाँ पे आपको एसी ही सिखा रहा है। खूंग थियाओ सिखाया क्या? नहीं सिखाया। मैम यहाँ पे एसी नहीं सिखाया, वो लास्ट चैप्टर में था। खूंग थियाओ था ना लास्ट सब। हाँ। हाँ, खूंग थियाओ था। तो यू कैन से, वो लोग इतना फैन यूज नहीं करते, वो लोग एसी। छिंग नी पाक खूंग थियाओ ताखाई। छिंग मतलब प्लीज, देन नी, और वोमन। वोमेन भी हम लोग आई, देन आई, नो ऊंचे लिथाइडा, मतलब तुम बोलो अरे घर में बहुत गर्मी है, तो तुम करो ओके, चिंग, नीमेन भी बोल सकते हो, और चिंग किसी को बोल सकते हो, मतलब कोई भी सब्जेक्ट दे सकते हो यहाँ पे। और लेट मी ऑल्सो बोल सकते हो, रंग वो भी बोल सकते हो। तो और यू कैन से चिंग नी पा हुंग तियाओ ताखाई। चिंग मतलब प्लीज, नी इज अ Ching, okay, I will give ching ni, then pa, स्विच ऑन द एसी। ni pa, then switch on, तो ताका ही होता है। पा के बाद मुझे यहाँ पे वो लिखना है। ऑब्जेक्ट हाँ। इज kung tiao। चिंग नी कौन क्या? पा kung tiao ताका ला। ताक है। चिंग नी पा चिंग छिंगनी पा कौन क्या ताका, ताक है। ताका means please, please turn on the AC। कैन यू प्लीज टर्न ऑन द एसी? मैम इसमें नी भी तो है। हाँ, तो आप नी भी लिखेंगे ना, चिंग नी भी लिख सकते हो, और ओनली नी भी लिख सकते हो। अगर छिंग नहीं लिखना है, ओनली नहीं लिख दो। लेकिन हम लोग पोलाइट अगर यूज करते, कैन यू प्लीज टर्न ऑन द, और कोई घर का लोग का बोलते तो टर्न ऑन द, कोई प्लीज नहीं लगाते। नीबले नीपा, नी पा, उसके बाद कौन क्या ताक है। पुंग्या ताखाई, वो बोल सकते हैं। अच्छा, ये वाला क्या है? वो द शिंगलीना। वो शिंगली मतलब हमें मिला लास्ट में, शिंगली मतलब शिंगली शियांग मतलब लगेज। शिंगली मतलब, शिंगली शियांग मतलब सूटकेस। शियांग अगर हटा दो, ओनली शिंगली बोलो, तो लगेज हो जाता है। वो द शिंगली ना मेरा, व्हाट अबाउट माय लगेज? ती चाओची, डोंट वरी। तो दे विल कीप इट, दे विल कीप इट, और समवन विल कीप इट। योरेन मतलब समवन, और नी आई मीन थामन मतलब दे, पा था, फंग ताओ ऊ चेनली। फांगता, ये तो ऊंची ली दे हैव ऑलरेडी गिवन। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे? पास्ट सेंटेंस बना है। थामन, थामन मतलब सब्जेक्ट, देन पा, देन था मतलब सिंगली, सिंगली को था बोल रहे हैं, मतलब प्रोनाउन यूज करें। यहाँ पे क्या लिखेंगे? थामन पा, थामन पा था, और थामन पा शिंगली, इंस्टेड ऑफ था यू कैन राइट शिंगली। हामिद पा था। हाँ, थामेन फा सिंगली लिख दो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि था बोलोगी तो था क्या है भाई, उसको तुमको वो चिंता लग जाएगी, था होता के। थामेन पा शिंगली, हामिद पा शिंगली ऊ फांग ताओ, चियनली। फांग ताओ, फांग भाव लगाना है, फांग ताओ मतलब, फांग ताओ मतलब टू कीप, ऊंचेनली घर के अंदर रख देगा। ऊंचेनली ऑलरेडी है, ऊंचेनली ऑलरेडी है, तो फांग ताओ तक लिखना है आपको। तो थामेन पा शिंगली फांग ताओ। थामेन, यहाँ पे हामिद पा शिंगली ये वाला फांगथाओ। कॉम्प्लेक्शन फॉलो करो। थामेन पा हामिद पा शिंगली फांगताओ। फांगथाओ आप अभी ऊ चियनली। तो वो लोग रख देगा घर के अंदर, लिख लिया ना? अभी डू यू हैव एनी प्रॉब्लम यार? नहीं मैम, लिख लिया। तो यहाँ पे सिर्फ पास्ट सेंटेंस ही सिखाया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिजल्ट सिखाया, ठीक है। दे जस्ट टॉट यू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिजल्ट। अच्छा, अभी अभी ये वाला सीखेंगे। हाँ, सो द स्ट्रक्चर शियन, और चाय, और यो, और रानहो। दिस इज कंपेरेटिवली इजी। हाँ, ये पहले वाला से इजी, ये भी इजी है, लेकिन तुम हमारे लिए इजी है, तुम्हारे लिए थोड़ा सा, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिजल्ट क्या होता है, ये तुम्हारा माइंड में क्वेश्चन होगा, बट व्हेन यू प्रैक्टिस अ लॉट, 10 पीस करके, देन यू विल अंडरस्टैंड। ओके, ये दिस इज वेरी इजी। तो द स्ट्रक्चर शेन, शेन मतलब फर्स्ट, चाय मतलब देन, और यो मतलब ऑल्सो अगेन और देन, रन हो मतलब फाइनली, और
बोल सकते हो कि then after that also. First, then and then indicates the sequence of a series of action. Chai indicates the action. Just now you have eaten pizza. Why are you drinking cold drinks? Okay. Chai indicates the action has not happened yet. The yo indicates the action has already happened. For example, तो ये वाला जो हमें ना, this is a different thing. This is not coming with this. This chai and yo in the previous lesson we have already learned. Chai मतलब again, yo मतलब also again. But हम लोगों ने already वो movie 2 time देखा है. हाँ. That point of time, the things which you have already done 2 times, that things will come chai. And yo matlab I will go to Beijing again. But the things had not happened yet. You have already been to Shanghai or Beijing. एक बार गए हो, फिर से तुम्हें जाना है. फिर से तुम्हें जाना. Again you would like to go. So that point of time, that is Sequence of a series of actions. so Yeah. yo indicates the action has already happened. तो तुमने मैंने गलत बोला. हाँ, already happened. ओ मैंने उल्टा बोला. Indicates the action has not happened yet. Has not happened yet. हाँ, ये अभी तक नहीं हुआ और ये ऑलरेडी हैपन हुआ. ओके. तो चाय मतलब तुम यू आर गोइंग वो चाय छू आई एम गोइंग टू पेचिंग अगेन and I have already gone to Beijing twice. So this is you. Okay. So this one here. Huetia iho. You go through the example, then you will go. Sometime no English में जो लिखा होता है that will, if you go through the example and practice in Chinese, then you will learn it more. I mean good way. Huetia yo after coming back home. Huetia मतलब come back. Iho मतलब after coming back home. वो means I. Xian मतलब first. चुओ मतलब टू डू. चुओ वे देखो ये भी चुओ ये भी चुओ. दिस चुओ इज अ वर्ब एंड दिस चुओ ये. चुओ ये एक साथ बोलना है. दिस चुओ ये मतलब टू डू होमवर्क. और कभी कभी ये वाला चुओ भी टू डू होता है. हमारा फर्स्ट बुक में ही मिल गया था. अगर ओनली दिस चुओ इज देयर नो एज ए वर्ब, दिस चुओ मीन्स ऑल्सो टू डू. ओके. हाँ, दिस चुओ मीन्स टू मेक प्रिपेयर टू डू. दिस चुओ मीन्स ऑल्सो टू. बट जो ये एक साथ अगर होता है दैट मीन्स होमवर्क. सो आफ्टर कमिंग बैक होम फर्स्ट आई विल डू माई होमवर्क. रन हो मीन्स रन हो मतलब यहाँ पे आपको बोला रन हो मतलब देन आई विल ईट फूड. ओके. ओके. 我先做了1个小时公共汽车. ओके. 又做了一会儿. मैं पहले वाले सेंटेंस का मीनिंग. अच्छा दिस वन फर्स्ट वन. अच्छा. आफ्टर कमिंग बैक होम फर्स्ट आई विल डू माई होमवर्क देन आई विल ईट फूड. अभी ये फूड कुछ नहीं, ईट मील और फूड, ये फूड उन लोगों ने कुछ लिखा नहीं कि ये ब्रेकफास्ट है कि लंच है कि डिनर है. ठीक है. कब कब कमिंग, तो हमें वो मेंशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम मेंशन नहीं किया ना. दे हैव नॉट मेंशन एनी टाइम. Otherwise, they would have used Wansheng, then I would have translated as dinner. They would have used Chaosheng, then I would have translated it as the time देख के हमें translate करना पड़ता है. I would have breakfast. Then they would have used Ufan. Ufan means lunch. हाँ, तो हम I would have translated as a lunch. So Chinese is that kind of. So but if it is easy, मतलब बात करने के टाइम तो पता ही चलेगा ना कब आएगा. अच्छा वो ये बोल रहा है तो वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करते हैं. ओके. तो वो शेन कुंगल यहाँ पे क्या बोला. 我先坐了1个小时公共汽车，又坐了1个会儿地铁才到小港家。तो यहाँ पे बोला फास्ट. शेन मतलब फास्ट. ओके. ये देखो ये वाला शेन. ओके. दिस इज मतलब फास्ट I sat in the public bus. Kung Chicha मतलब public bus for 1 hour. I sat 1 hour in public bus. Chuola मतलब sit. Chuo मतलब sit. So in past tense SAT sat. I sat, but this chuo means also by. So sometimes this chuo use as a main verb. Sometimes this chuo use as a
preposition. तो यहाँ पे lo they have used, that is means this is main verb. sat होगा. हाँ, 做了. I sat 1 hour. 1个小时 मतलब 1 hour. 公共汽车 मतलब bus, public bus. I sat in the public bus for 1 hour. I sat in the public bus for 1 hour. 又做了 again sat one for a time. 一会儿 they did not mention the time. 一会儿 means for a while. For a while 地铁 मतलब सबवे जो होता है ना, 地铁. Again I sat for a while in the subway. 才到小刚家 and then finally I reached Xiaokang house. So this chai I taught you, whenever things are not satisfactory, it's not that मतलब going on smoothly, then they will use chai. मतलब इतना कुछ, एक बार ट्रेन बस में गया, फिर मेट्रो में गया, फिर जाके उसने पहुंचा. तो दिस इज नॉट, अगर वो ड्राइव करके जाता तो एकदम 1 घंटे के अंदर पहुंच जाता. हाँ, तब वहां पे च्यू लगाते. ये इंस्टेड ऑफ चाय यू वुड हैव गिवन च्यू. तो च्यू एंड चाय का डिफरेंस इज द थिंग्स व्हिच इज नॉट गोइंग स्मूथली, then we'll use chai, and the things which is going smoothly then use chew. Okay, now यहाँ पे क्या बोला? This one, 你嫌8点是节目看完吧，然后再给我挂电话. मतलब इसका मतलब क्या होता है? Now it's related to numbers. हम्म पता नहीं, पढ़ना तो नहीं आता मैम अभी. हाँ, तो उसने बोला क्या? नीशियन मतलब यू फास्ट, तुम नीशियन यू फास्ट. खानशी मतलब टीवी. And share means first. हाँ, शेन मतलब फर्स्ट. यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे देखो, शेन मतलब फर्स्ट. यू फास्ट, उसने क्या बोला? यू फास्ट. बोलो. Ma'am, Nishian. Next. देन टीएनसी चेमू अभी मिला. टीएनसी चेमू मतलब मूवी, Yeah. टीवी प्रोग्राम. देन खान हाँ. खानवान पा, यू प्लीज फिनिश वॉचिंग द टीवी प्रोग्राम. रन हो मतलब आफ्टर दैट. देन चाय, then you give me a call. Then chai KO means to me. हुए तीन हुआ. Then reply my or call me back. Okay. Okay. 1 मिनट के अंदर दूसरा लिंक में जाना, ठीक है? शेन Yes, पा ma'am. मी फान चो हाउ. ओके, शेन मतलब फास्ट यू prepare the rice. 然后再把一块新鲜的